بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ برا شخص کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ ترجمہ: اور وہ شخص جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کسی طرح موت قصہ چکا ہوتی، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا۔ سورہ الحاقہ۔ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرے مسکرانے کی وجہ معلوم ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے مسکرانے کی وجہ بندے کا اپنے رب سے خطاب ہے جو کہہ رہا ہے اے میرے رب تو نے مجھے ان گناہوں سے جو مجھ پر عذاب کا سبب ہیں کیوں نہیں بچایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کیوں رہا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ پر سوائے اپنی جنس کے کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو مجھ پر گواہی دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج تیرا نفس ہی تجھ پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو کہا جائے گا تم بولو، وہ بول کر اس کے اعمال بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعلمون۔ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعضاء کو یہ طاقت عطا فرما دے گا کہ وہ بول کر اس کے ہر قسم کے اعمال کا تذکرہ کر دیں گے۔ جس عضو سے جو کام کیا ہوگا وہ عضو اس کے متعلق بتائے گا کہ اس شخص نے مجھ سے یہ کام کیا تھا۔ ترجمہ: اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے، لیکن تم تو یہ سمجھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ پارہ 17-24 باب ہفتم احوال جنت شفیع محشر۔ جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمود پر جلوہ گری ہوگی، آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی 8 قسم کی شفاعتوں کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کی وجہ سے ہی کھلے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کہوں گا کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ خازن جنت کے کہے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا ہاں مجھے آپ کے لیے حکم دیا گیا تھا میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ تمام انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں۔ قیامت کے دن لوائے حمد و شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور ان کے بغیر تمام نبی اس کے نیچے ہوں گے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کے دروازوں کی کنڈیوں کو میں ہی حرکت دوں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ہی دروازہ کھولے گا، سب سے پہلے مجھے ہی جنت میں داخل فرمائے گا اور میرے ساتھ فقراء یعنی غریب مومنین بھی ہوں گے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں ہی اگلے اور پچھلوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم ہوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اس کے حوالے یہاں لکھے ہوتے ہیں، میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ جیسے اس کا لکھا ہوا ترمذی، دارمی، مشکات، باب فضائل سید المرسلین، جیم 2 سواد 513۔ تو اس طرح ہر حدیث کے حوالے لکھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، قیامت کے دن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہی ہوگا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ آدم علیہ السلام اور آپ کے سوا تمام نبی میرے ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ کمالات بیان حقیقت کے لیے ذکر فرمائے، فخر و تکبر کے طور پر نہیں۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری حاصل ہے، لیکن آج انکار بھی کیا جاتا ہے۔
क़यामत का जिक्र फरमाया क्योंकि वहाँ किसी को इनकार करना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि सब ही आपके मोहताज होंगे। सैयद कहते ही उसे हैं जो तमाम से फौकियत यानी बरतरी रखता हो और लोग अपने मसाइब व आलाम में उसकी तरफ रजू करते हों। मैंने अपनी किताब शमा हिदायत में इसकी काफ़ी वजाहत की है। ये किताब ख्याल से बहुत बढ़ गई, इसलिए अब बहुत इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। इलामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने 27 सहाबा से हदीस शफात मरवी होने की तस्दीक की है, लेकिन उन सही हदीस सहीहा के बावजूद मुतज़िला और ख़वारिज ने शफात का इनकार किया। इलामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हदीस मुतवातिर है, बस बड़ा बदबख्त है वो आदमी जो शफात का मुनकर है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि आपने एक दिन खुतबे में फरमाया कि इस उम्मत में एक ऐसा गिरोह पैदा होगा जो अज़ाब कब्र की भी तकज़ीब करेंगे और शफात का भी इनकार करेंगे। आपसे पहले ही भी इसका इनकार मुतज़िला और खारिजियों ने किया और आज भी एक तबका बड़ी शदोमत से इसका मुनकिर है, और जब दलाइल सहीहा के बाइस इनकार नहीं कर सकते तो शफात का ऐसा मफहूम बयान करते हैं जिसमें शान मुस्तफ़ा का इनकार पाया जाता है। लेकिन उन्हें यह जिसारत करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज जो शफात का इनकार करेगा वो कल उससे महरूम कर दिया जाएगा। जन्नत के तबकात। जन्नत के 8 तबके हैं। जन्नतुल फिरदौस, जन्नत अदन, जन्नत मावा, दारुल खल्द, दारुस्सलाम, दारुल मुकामा, इलियीन, जन्नत नईम। जिस तरह इंसानों के अमाल होंगे उसी तरह उन्हें जन्नत में मुकाम अता किया जाएगा। जितने आला अमाल होंगे उनके मुताबिक ही जन्नत में मुकाम रिफत और बुलंदी होगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि सैयदुल कायनात हैं तो इसी वजह से आपको मुकाम महमूद, वसीला, फजीलत हासिल होगा, बल्कि बाज़ रिवायात के मुताबिक आपको अर्श मौला पर जलवागर किया जाएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वही लामकां के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सर अर्श पे है तेरी गुजर, दिल फर्श पे है तेरी नज़र, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे अय्या नहीं। मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़क्त इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और रिवायात में ये भी आया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बिठाया जाएगा और ख़ास लिबास सब्ज़ जोड़ा पहना दिया जाएगा और आपको इजाज़त दी जाएगी कि जो चाहते हो कहो और जो पसंद करते हो वही तलब करो। उस दिन मालूम हो जाएगा कि मुकाम महमदी क्या है और इस महफिल और मार्के के सदर व बादशाह कौन हैं। हकीकत तो यह है कि उस दिन हबीब पाक अलतहिया वालसना की शान करीमी को सब ही मान जाएंगे। आपके सिवा कहीं और मुकाम पना नहीं मिलेगा, आपके बगैर कोई और शफात करने वाला नहीं मिलेगा। रबूबियत को मान जाएंगे, लेकिन फ़ायदा सिर्फ उनको ही होगा जिन्होंने दुनिया में माना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेक लोगों की शफात से गुनाहगार जन्नत में जाएंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम वालों की सफ़ बनी होगी, वहाँ से एक जन्नती शख्स का गुजर होगा। उनसे एक शख्स कहेगा, ए फला शख्स, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही शख्स हूँ जिसने तुम्हें एक मर्तबा पानी वगैरह पिलाया था। उनमें से एक और शख्स कहेगा, मैंने तुम्हें वजू के लिए पानी दिया था। वो शख्स उनके लिए शफात करेगा तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वजाहत हदीस। जहन्नमियों से मुराद कुफार नहीं बल्कि मोमिन, गुनाहगार, फासिक व फाजिर मुराद हैं। वो जन्नती लोगों यानी नेक उलमा और औलिया कराम, सूफिया उज़ाम के रास्ते में इस तरह सफ़ बनाकर खड़े होंगे जिस तरह फुकरा लोग अगनिया के रास्ते में सवाल करने की गर्ज से सफ़ बांधे खड़े होते हैं। जन्नती लोग वहां से गुजरेंगे, उनको पहचानने वाले गुनाहगार अपने इमदाद के ज़राए की याद दिलाएंगे। कोई कह रहा होगा, मैंने तुम्हें पीने के लिए पानी या दूध वगैरह अता किया था। कोई कह रहा होगा, मैंने तुम्हें वजू के लिए पानी दिया था। कोई कह रहा होगा, मैंने तुम्हें एक लुकमा दिया था। कोई कह रहा होगा, मैंने तुम्हें कपड़ा दिया था। कोई किसी किस्म की मावनत की होगी तो वो भी उसका तज़किरा कर रहा होगा। और अगर किसी ने कोई एक पाकीज़ा कलमे से
किसी को नसीहत करके फ़ायदा पहुंचाया था तो उसका भी वो तज़किरा करेगा। गर्ज ये कि जन्नती लोग अपनी अपनी जान पहचान वाले मावनीन की शफात करेंगे। वो गुनाहगार मुजरिमीन भी खुशकिस्मत होंगे जो जन्नती लोगों की शफात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें मुसलमानों को इस बात पर बांगिख्ता किया उभारा गया कि वो दूसरे मुसलमानों की इमदाद करें, खसूसन नेक लोगों की, और उनके साथ बैठा करें और उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि नेक लोगों की मोहब्बत दुनिया में इंसान के वक़ार ज़ेब व ज़ीनत का ज़रिया है और आखिरत में नूर मार्फत और कामयाबी का सबब है। जन्नत की अज़मत। अल्लाह के नाम की अज़मत इंसानों की समझ से बालातर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी हदीस कुदसी है, मैंने अपने बंदों के लिए ऐसा मुकाम तैयार कर रखा है जो किसी आंख ने देखा नहीं और किसी कान ने सुना नहीं और किसी दिल पर खटका नहीं। अगर तुम चाहते हो तो कुरान पाक की ये आयत पढ़ लो, जिसका मतलब है कोई नफ्स नहीं जानता जो उनकी आंखों की ठंडक उनके लिए मख्फी करके रखी होती है। इससे मुराद खसूसी सवाब और इनाम इकराम है, यानी सवाब की अजीम किस्म जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए तैयार कर रखी है, उसकी हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है, मखलूक में से कोई एक भी नहीं जानता। ये वो अजीम सवाब और मर्तबा होगा जिससे नेक लोगों की आंखें ठंडी होंगी। यानी यह नेक इंसान अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी तमाम ख्वाहिशों पर कामयाब कर देगा, यहाँ तक कि तू राज़ी हो जाएगा और तेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी, तुझे गैर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जन्नत का कम अज़ कम मुकाम दुनिया की तमाम नेमतों से आला है। जन्नत में कोड़ा यानी चाबुक छड़ी रखने का मुकाम दुनिया और उसकी तमाम नेमतों से बेहतर है, चूँकि जन्नत की नेमतें बाकी रहने वाली और इसकी नेमतें फना हो जाने वाली हैं। ये यकीनी बात है कि बाकी रहने वाली चीज़ फना होने वाली से बेहतर है। इब्नुल मुल्क रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगरचे दुनिया में अल्लाह के कलाम का नज़ूल भी हुआ है और अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़हूर भी हुआ है और अंबिया किराम भी तशरीफ़ लाए, लेकिन ये हुक्म उनको शामिल नहीं, उनके सिवा बाकी दुनिया की तमाम नेमतों यानी मालो दौलत आलिशान महलों से जन्नत का अदना दर्जा भी आला होगा। कोड़े यानी चाबुक या छड़ी को जिक्र करने में ख़ास करने की वजह यह कि उसे हकीर समझा जाता है। जब कोई सवार उतरना चाहता है तो वो पहले अपनी छड़ी ज़मीन पर फेंकता है, फिर खुद उतरता है। फिर उसके छड़ी फेंकने की वजह यह होती है कि दूसरे साथियों को मालूम हो जाए कि यहाँ ही उतरना है, वो आगे न चले जाएं। लेकिन छड़ी को ज़मीन पर फेंकने से उसके रखने की जगह की हकारत भी मालूम हो गई, इसलिए वाज़े फरमाया कि जन्नत ऐसा मुकाम भी दुनिया अज़ीमुश्शान नेमतों से अरफा व आला होगा। जन्नत के दरख्त की अज़मत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में चलने वाला सवार उसको 100 साल में भी कता नहीं कर सकेगा, और जन्नत में तुम्हारे एक कमान की मिकदार का मुकाम भी सूरज के तुलू व गुरूब से बेहतर है। जन्नत के दरख्त का नाम तौबा है। जिस तरह इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यकाला इन्नहा तौबा कहा जाता है, बेशक वो तौबा है। ख्याल रहे दरख्त के साए में चलने से मुराद उसके नीचे किनारे पर चलना है, क्योंकि दुनिया में साए का एतबार सूरज से है। ख़ुसूसन दरख्त के साए में उस वक़्त इंसान चलता है जब धूप और सूरज की तमाज़त यानी गर्मी से बचना चाहता हो। लेकिन जन्नत की तारीफ़ में अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है, जन्नती लोग जन्नत में ना धूप देखेंगे और ना सर्दी, और मुमकिन है कि दरख्त के ऊपर ऊपर नूरानियत का ज़हूर हो और उसके नीचे हिजाब हो जो साया नज़र आ रहा हो। जिस तरह हमारे मुहावरे में रात को चिराग बिजली के कमकमों की रोशनी में नजर आने वाले अक्स को भी साया कह दिया जाता है। इसी तरह सुबह सादिक से लेकर तुलुए शम्स तक सूरज की शुआओं के मुकाबिल उस वक़्त को भी ज़िल यानी साया कहा गया है। रब ताला ने फरमाया, फैलाया हुआ ज़िल साया, इससे मुराद यही वक्त है। जिस तरह इंसान शिकार करने के लिए जाए तो वो दरख्त के साए में या और किसी जगह आराम करने के लिए अपना कुमान रख कर अपनी अपनी जगह मुख्तस करते हैं, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जितनी जगह तुम कुमान रखते हो वो तुलुए शम्स यानी सूरज और गुरूब शम्स के दरमियान मुकाम से आला है, यानी तमाम दुनिया से आला है।
یعنی بخاری میں مزید وضاحت موجود ہے کہ جنت میں درخت کے نیچے چلنے والے سوار سے مراد وہ سوار ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس کے جسم کو بہت پختہ کیا گیا ہو اور وہ بہت تیز چلتا ہو، عمدہ قسم کا گھوڑا ہو۔ جنت کیسی ہے؟ جنت میں شیشے کے خیمے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک شیشے کا خیمہ ہوگا جس کا طول و عرض 60 ذرا یعنی 90 فٹ ہوگا۔ ایک روایت میں طول 60 ذرا کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں عرض 60 ذرا کا ذکر ہے، اور ہر کونے میں اس کی اہل ہوگی، کوئی باز دوسرے باز کو نہیں دیکھ سکے گا۔ مومنین ان کے پاس جائیں گے، 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن اور ان کی تمام اشیاء سونے کی ہوں گی۔ جنت عدن میں مومن قوم اور رب کو دیکھنے میں صرف ردا یعنی چادر کبریائی حائل ہوگی۔ ارباب کمال کو 2 جنتیں چاندی کی اور 2 سونے کی حاصل ہوں گی۔ اس طرح 4 جنتیں ہوں گی، لیکن ان کے طبقات 8 ہیں، جیسے شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ انسان جب جنت میں ہوگا اس کی جسمانی قدورت اٹھا لی جائے گی، حسی موانع ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے جلال کا اتنا روب ہوگا اور اس کی نورانیت کا اتنا غلبہ ہوگا کہ سوائے اس کی رحمت اور مہربانی کے انسان رب تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ یہی ردائے کبریائی ہے۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجہ ہے اور ہر درجے میں اتنی وسعت ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان وسعت ہے۔ فردوس تمام سے اعلیٰ درجے والی ہے، اس میں جنت کی 4 نہریں جاری ہیں، ان تمام جنتوں کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ وضاحت حدیث۔ حدیث شریف میں مایا درجہ 100 درجے کا میہ درجہ 100 درجے کا ذکر ہے، لیکن بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے۔ جنت میں قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق درجات ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے جس درجہ میں داخل ہوں گے اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ ان حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ جنت میں بہت سے مدارج ہوں گے۔ 100 کا ذکر کثرت کے لیے ہے، تعداد کے لیے نہیں۔ اہل عرب 70 100 وغیرہ الفاظ سے عام طور پر کثرت والا معنی لیتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کثیر تعداد میں سے 100 درجے ایک ایک شخص کو حاصل ہو۔ فردوس کا لغوی معنی ایسا باغ جس میں ہر قسم کے درخت اور انگور کی بیلیں ہوں، لیکن جنت کے طبقات میں فردوس کو وہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہوگا جو دوسرے کسی طبقے کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے امت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ، تو اس کو تمام جنتوں سے اعلیٰ جنت طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی برتری کا تذکرہ رب تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پارہ ابھی پہ 1-2 لکھا ہوا ہے، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے کیا سب امتوں سے افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ جب پہلی امتیں تبلیغ انبیاء کا انکار کر دیں گی تو رب تعالیٰ باوجود علم کے منکرین پر حجت قائم کرنے کے لیے تبلیغ پر انبیاء کرام سے گواہ طلب کرے گا۔ انبیاء کرام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ پیش کریں گے۔ پہلی امتیں کہیں گی تم ہمیں کیسے پہچانتے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے سچے نبی نے اللہ کا کلام اس کی کتاب کے ذریعے پہنچایا جس سے ہمیں علم حاصل ہوا۔ پھر ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے کے لیے لایا جائے گا۔ آپ اپنی امت کے حق میں نگہبان کی حیثیت میں شہادت دیں گے۔ خیال رہے کہ نگہبان کا لفظ صرف اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ہے، باقی کسی ترجمے میں نہیں۔ یہ لفظ آپ نے کیوں زیادہ فرمایا؟ مترجمین کس طرح علمی نقطے سے غافل رہے، یہ وضاحت میں نے اپنی کتاب تسکین الجنان میں کی ہے، وہاں دیکھیں۔ 4 نہریں، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین لا
शरीबीना व अनहारुम मिन असन मुस्सगा। सूरह मोहम्मद। अल्लाह माफ़ करे मेरी गलती की जेर ज़बर कुछ गड़बड़ हुआ हुआ। इन जन्नतों में ऐसी पानी की नहरें हैं जो कभी ख़राब ना हो, और ऐसी दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा ना बदले, और ऐसी शराब की नहरें हैं जिसके पीने में लज्जत है, और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ़ किया गया है। एक नहर पानी की है और वह पानी दुनिया के पानियों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ज़्यादा देर ठहरने की वजह से उसका जायका और बू नहीं बदलेंगे। हालांकि दुनिया के पानियों में बदबू पैदा हो जाती है, गल सड़ जाता है। सबसे पहले पानी का इसलिए जिक्र किया कि इंसान दुनिया में बग़ैर पानी के ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही दरपेश आती है। दूसरी नहर दूध की होगी, वो भी दुनिया के दूध से मुख्तलिफ होगा, ना खट्टा होगा और ना ही उसमें बदबू पैदा होगी, बल्कि वो सिर्फ कुदरत से ही दूध मार्ज़ वजूद में आएगा, क्योंकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दूध की नहर जानवरों से दुआ हुआ दूध नहीं होगा। इसी तरह हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जन्नत का दूध गोबर और खून के दरमियान नाली से पैदा होने वाला नहीं होगा। दूध का जिक्र दूसरे मर्तबे पर किया क्योंकि दूध को कसीर अहले अरब ताम की जगह भी इस्तेमाल करते थे, इसलिए पीने के बाद गोया के खाने का जिक्र किया जा चुका है। तीसरी नहर शराबन तहूरन की होगी। दुनिया के शराब नशे वाले होते हैं, उनमें बदबू होती है, बनाने वाले की मैल कुचैल की आमेजिश का भी कभी गुमान होता है, लेकिन जन्नती शराब इन तमाम चीज़ों से पाक होगा। तीसरे मर्तबे पर उसका जिक्र भी इसलिए किया गया है कि आम तौर पर खाने के बाद तलज़्ज़ वाली चीज़ का इस्तेमाल होता है, इसलिए जन्नत में भी दूध की ग़िज़ाइयत के बाद शराब से लज्जत दी जाएगी, लेकिन वो शराब पाकीज़ा होगा, साफ़ सुथरा मशरूब होगा, नशे से पाक होगा। चौथी नहर शहद की होगी, लेकिन वो शहद खालिस साफ़ शफ़ाफ होगा। दुनिया के शहद में बाज़ औक़ात लोग शम्मा की या चीनी की आमेजिश करके शहद को ख़राब कर देते हैं, जो खालिस नहीं रहता। इसी तरह दुनिया के शहद में शहद की मक्खियों के फुजलात की आमेजिश भी हो जाती है, लेकिन जन्नती शहद उन तमाम चीज़ों से पाक होगा, क्योंकि वो फ़क्त कुदरत से मार्ज़ वजूद में आया होगा। ज़हरी असबाब को उसमें दखल नहीं होगा। शहद का जिक्र चौथी मर्तबा पर किया क्योंकि उसमें शिफा है। मर्ज़ में उसको इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर खाने पीने की बेख्तियाती पर मर्ज़ लाहिक होती है और दवा की ज़रूरत दरपेश आती है, इसलिए उसका जिक्र सब के बाद आम आदत के मुताबिक है। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की 4 नहरों के नाम दुनिया की नहरों के मुताबिक बयान फरमाए हैं कि जन्नत में एक नहर का नाम नील है, दूसरी का दजला, तीसरी काफरात और चौथी का सिहान। बाज़ जगह सिहून आया हुआ है, ये सिर्फ नामों की मुताबिकत है, इससे ये ना समझा जाए कि ये दुनिया के दरिया शायद जन्नत के ही हैं। बेहकी में हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जन्नत में नहर नील शहद की नहर, दजला दूध की नहर है, नहर फुरात शराब की नहर है और नहर सिहून पानी की नहर है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।